ओके राजा, सो वी आर स्टार्टिंग विद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहली चीज रीड करो, सारे का ध्यान इधर होना चाहिए, हले नोटिंग कोई नहीं करनी। हाउस प्रॉपर्टी हेड ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਬੇਸਿਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰॉपर्टी ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਬਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਰਜੇਬਲ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੀਜ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਅਸੈਸੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦ ਓਨਰ ਆਫ दैट ਹਾਊਸ प्रॉपर्टी। ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਬੀਇੰਗ ਓਨਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੈਸ অর नो? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਆ ਕੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚ? ਕੀ ਯੈਸ ਯੈਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ? ਸਬਲੈਟਿੰਗ, ਯੈਸ অর नो? ਵਰਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਬਲੈਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਗਿਵ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਈ, ਉਹ ਚ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਬਲੈਟ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ, ਬਟ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰॉपर्टी ਹੈਡ ਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਓਨਰ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰॉपर्टी, ਯੈਸ অর नो? ਸੋ ਕੀ ਆਇਆ? ਇਸ ਹੈਡ ਚ ਕਵਰ ਹੋਣ ਲਈ ਦਾ ਐਸਐਸਸੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰॉपर्टी। ठीक है, सेकंड इधर ही फिर वो पॉइंट एक्सप्लेनेशन आ गई कि अगर इनकम फ्रॉम सबलेटिंग की गल करिए फिर वो कितने जाऊगा? तो इट विल गो टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एम आई क्लियर, यस और नो? उस तो बाद साडा बेसिक फॉर्मेट सॉल्विंग ਲਈ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ? ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਕਿਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ? ओनर ने। ब्रैकेट्स की कंडीशन लिखी, पेड बाय ओनर। अगर ओनर दा सेकंड पर्सन कौन हो सकता है रेंटल इनकम च? एक हुंदा ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, दूजा कौन है? टेनेंट, जिन्हें किराए ते जगह लई। सो म्यूनिसिपल टैक्स कोई भी पे कर सकता। माइनस केड़ा होना? इफ इट इज पेड बाय ओनर। अगर म्यूनिसिपल टैक्स इज पेड बाय टेनेंट तो माइनस नहीं होना। मैं पे ही नहीं किया गवर्नमेंट को, मैं खर्चा मना के ले लवां फायदा? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਬੀਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ ਟੈਕਸ। ਟੈਕਸ ਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਹੋਏ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਹੀਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਟੈਕਸ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਯੈਸ অর नो? ਸੋ ਉਸ ਅਸੈਸੀ ਦੇ ਥਾਟ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਟੈਕਸਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਨ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਪੇ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਟੈਨੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਨੇ एग्रीमेंट कर लिया, अगर ਉਹਨੇ पे ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਾਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ? ਯੈਸ অর नो? पे ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ पे ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੇਡ ਬਾय ਓਨਰ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਨੈਟ ਐਨੂਅਲ ਵੈਲਿਊ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟੈਕਸ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਨੈਟ ਐਨੂਅਲ ਵੈਲਿਊ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 24। दो डिडक्शन मिलती, केड़ी केड़ी? स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज 30% ऑफ NAV, नेट एनुअल वैल्यू, एंड सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन लोन। सो ये किस तरह पॉइंट आउट हो जाता? 24A एंड 24B। सेक्शन 24 दा A पार्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन दिंदा एंड 24 दा B पार्ट इंटरेस्ट ऑन लोन दी डिडक्शन। देखो जिस प्रॉपर्टी दे ऊपर तुसी कोई रेंटल इनकम अर्न कीती ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਸੋਚ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਿਓਗੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਆਈ ਐਮ ਪੇਇੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ। ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਲਿਆ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ डिडक्शन ਲੈ ਲਓ, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक है, बैलेंस की बचा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर वो इंटरेस्ट ऑन लोन भी डिडक्ट करके बैलेंस बचूगा, देन इट विल बी योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर आजा? उस तो बाद स्टार पाके की लिखे? हाँ जी, ए पॉइंट की है मैं तुहानू दसदा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 च ए पॉइंट वैसे तो सारी चीज जस्ट हले एक फॉर्मेट लिखा, आगे जाके डिस्कस होनी है, तो मैं उपरों एक ओवरव्यू देता। पॉइंट स्टैंडर्ड डिडक्शन सुनो, हर पर्सन कहना मैं अगर कुछ अर्न कर रहा तो मेरे खर्चे भी तो होंगे सर,
अगर मैं इस प्रॉपर्टी ते किसी ਨੂੰ रेंट ਤੇ जगह दी रेंट अर्न किया, मैं कहूँगा मेरा मेंटेनेंस का खर्चा नहीं पैंदा। कल परसन कहता डोर का आ चीज टुट गई सर, इतने पेंट खराब हो गया, मैं उत्ते मेंटेनेंस नहीं करांदा। ठीक है, पहला की हुंदा सी, अलग अलग नेम्स पढ़ोगे तुसी इस चैप्टर च कि ग्राउंड फ्लोर रेंट या समथिंग, बहुत नेम्स आओगे मेंटेनेंस रिलेटेड, ओदा ਲਈ अलग अलग डिडक्शंस बनदियां सी पुराने टाइम, मेरे पढ़न तो भी पहला, मैं भी नहीं की हुई वो चीज, बट क्वेश्चंस जो कवर्ड आ। पॉइंट इज कि पहला हुण तुसी खुद सोचो, जेड़ा जेड़ा पर्सन हाउस प्रॉपर्टी हेड दे विच सॉल्विंग कर रहा, हर पर्सन दे कोई खर्चे आ मेंटेनेंस दे, यस और नो? बट हर पर्सन पहला तो उस खर्चे का खुद रिकॉर्ड बनाऊगा, ਉਹਦੀ ਸਲਿਪਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗੀ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਲਿਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ 30% ਆਫ, ਨੈਵ ਦਾ 30% ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਖਰਚੇ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਨੈਟ ਐਨੂਅਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਦਾ 30% ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਚੀਜ਼? ਦੈਟ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਨੈਟ ਐਨੂਅਲ ਵੈਲਿਊ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੈਂਟ ਕਮਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਪੋਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਦਾ 30% ਮੀਨਸ 30,000 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਸ ਲਈ ਦੇਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਓ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਚੈੱਕ एवरीथिंग, 30% ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ অর নো? ਇਸ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਆਣ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, that is called let out property, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, that is called self occupied property. One is let out property, the other one is self occupied. पर्सन कहता सर मेरी एक प्रॉपर्टी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैं खुद रह रहा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕਮ ਕਿਉਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਰਹਿ ਲਓ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਨੈਟ ਐਨੂਅਲ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨਾ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸੈਲਫ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਗਰੋ ਹੋਇਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ, ਇਨਕਮਸ ਵਧੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧਿਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਚ, ਪਰਸਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨੈਟ ਐਨੂਅਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 2 ਸੈਲਫ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਹਾਊਸਸ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ nil, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ 2 ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮਾਫ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਚੀਜ਼? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਪਰਸਨ ਕੋ 2 ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚਾਹੇ ਖਾਲੀ ਪਈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੈਵ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗ दैट वे, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन डिपेंड करोगे। बट हुन तुहाडे को अगर 2 प्रॉपर्टीज भी आ, 2 हाउस प्रॉपर्टीज आ, 2 दी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नु मान के नैव नील कीती जा सकदी, मींस तुहानू माफ करते इन शॉर्ट। क्लियर है जी? सो इस फॉर्मेट दे विच कुछ क्रक्स क्लियर होया। पहला एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितों आऊगी वो आपां हले डिस्कस करांगे, वो चों माइनस करदे म्युनिसिपल टैक्सेस, बट केड़ा पेड बाय ओनर, यू विल गेट नेट एनुअल वैल्यू। उस तो बाद डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन पहली स्टैंडर्ड डिडक्शन दैट इज 30% ऑफ नैव सब नु मिल जानी। सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन लोन, स्टार क्यों पाया, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ मल्टीपल रूल्स आने, मल्टीपल कंडीशंस आने। जीएवी ठीक है, एक बार रूल सीख लोगे दैट विल बी डन। म्युनिसिपल टैक्स ठीक है, उधर रूल इतने कवर हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई रूल है ही नहीं 30% लगाना, दैट्स ओके। सारे रूल्स कितने आने, इंटरेस्ट ऑन लोन ते मल्टीपल रूल्स आने, जिहदे नाल इहदी कंप्यूटेशन अलग अलग क्वेश्चन से चेंजेस आओगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड दा अलग, लेट आउट दा अलग, सारे रूल्स इंटरेस्ट ऑन लोन नु इफेक्ट करो। सो ओनू हाईलाइट किया कि दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम आई क्लियर? यस और नो? हुण गल आई ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड किदा करनी, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਟੈਪਸ ਹੈ, ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਥੀਸ 4 ਸਟੈਪਸ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਟੈਪ, ਹਾਇਰ ਆਫ MRV, MRV is municipal rental value, higher of MRV municipal rental value or FRV fair rental value, municipal rental value or fair rental value whichever is higher, पहले स्टेप 14 आंसर आऊगा। स्टेप 2 ERV expected rental value is equal to lower of step 1 और standard rent। तीन नाम है, एक फेयर रेंटल वैल्यू होंदा, एक म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू होंदा और एक स्टैंडर्ड रेंट होंदा।
ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਤੱਕ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਯੈਸ অর नो? ERV ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ। ਸਟੈਪ 3 ਹਾਇਰ ਆਫ ਸਟੈਪ 2, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨੀਡ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਵਟਐਵਰ। ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਂਟ ਰੋਲ 'ਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਰੂਲ ਲਾਅ ਨੇ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਐਕਚੁਅਲ ਵੀ। ਸੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹਾਇਰ ਆਫ सेकंड स्टेप और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਤਾਂ ਸੀ ਬਟ ਹਲੇ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਕਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਂਟ ਇੰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਉਹ ਚ 10,000 ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਰਿयलाइज्ड ਰੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। कंपेयर इट विद स्टेप 2 whichever is higher। 3 steps clear। स्टेप 4 की आ गया, GAV आ गया फाइनली कि द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। स्टेप 3 माइनस वैकेंसी अलाउंस। वैकेंसी की ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਂ 8 ਮੰਥਸ ਦਾ ਰੈਂਟ ਰੈਂਟਡ ਰਹੀ, ਵਿੱਚ 4 ਮੰਥਸ ਪਰਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਾਲੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਟੈਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਕੈਂਸੀ ਅਲਾउंस। ਖਾਲੀ ਵੇਕੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, बट चलना इसी सीक्वेंस से। तुसी बोलोगे स्टेप 1 हायर ऑफ MRV और FRV। स्टेप 2 ERV इज इक्वल टू लोअर ऑफ स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेंट। स्टेप 3 इज हायर ऑफ स्टेप 2 और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है। स्टेप 4 GAV इज इक्वल टू स्टेप 3 माइनस वैकेंसी अलाउंस। क्लियर है? MRV is म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू, FRV is फेयर रेंटल वैल्यू। 5 to 7 मिनट्स लगाओ, इतने तक नोट करो। इलस्ट्रेशन देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो कंप्यूट द एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। ERV केड़े स्टेप च है? स्टेप 2। उतने तक स्टेप 1 क्या है बोलो? MRV और FRV whichever is higher means ਇਹਦਾ आंसर क्या होगा? 36,000। then step 2 is ERV is equal to step 1 और standard rent whichever is lower। ये तो नॉट एप्लीकेबल ही हो गया, मींस आंसर क्या होगा? 36। यदि केस बी से देखो, ये दोनों जो whichever is higher 36,000। उस तो बाद ERV is equal to this or this whichever is lower, तो 33,000। केस बी आ रहा है, ठीक है, यस और नो? सी केस दसो। स्टेप 1 whichever is higher, MV और FRV whichever is higher 36,000। then 36 और 42 whichever is lower, तो 36 ही आ गया expected rental value। any doubt? yes or no? 2 steps clear हो गए। आगे देखो केस। क्वेश्चन नंबर 3। Mr. R has a house at Pune where rent control act is applicable। rent control act applicable है मतलब इस क्वेश्चन से स्टैंडर्ड रेंट होगा, ਜਿਹੜਾ स्टैंडर्ड रेंट ਹੁੰਦਾ ਉਹ as per rent control act ਆ, ठीक है। कहते इट्स MRV is 1,08,000 per annum, FRV is 1,20,000 per annum, standard rent is 1,02,000। so ERV फाइंड करके दो। बोलो स्टेप 1 MRV और FRV whichever is higher, क्या होगा आंसर? 1,20,000। then step 2 is ERV is equal to step 1 और standard rent whichever is lower, तो 1,02,000 is your answer। second B part, in above case what difference will it make if rent control act is not applicable। मतलब standard rent not given, not applicable means आंसर पे आही वाला कंटिन्यू हो जाना सी 120 वाला। डाउट दसो ये क्यों पूछा उन्होंने? क्योंकि सेकंड स्टेप च बच्चे गलती की करते सी राजा। ਤੁਹਾਡਾ फर्स्ट स्टेप ਦਾ आंसर ਕੀ ਆਇਆ? 1,20,000। यस और नो? जब स्टेप 2 लिखते कि लिखा ERV is equal to step 1 और स्टैंडर्ड रेंट,
whichever is lower। ਹੁਣ ਜਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨੀਲ ਪਾ ਦੋ, ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਤਾਂ ਨੀਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, लोअर क्या आ जाऊगा नील, बट नील नहीं लिखना, नॉट एप्लीकेबल लिखना राजा, मींस 1,20,000 ही कंटिन्यू हो। जीरो और नॉट एप्लीकेबल से मेजर डिफरेंस है, यस और नो? यू विल कंसीडर इट जीरो, फिर तो लोअर आऊगा, बट यू विल कंसीडर नॉट एप्लीकेबल। स्टैंडर्ड रेंट वाला तो कंडीशन अप्लाइड ही नहीं है, फिर पिछले स्टेप का आंसर ही पिक कर लो बस। क्यों लोअर नॉट एप्लीकेबल, वही कह रहा है ना, नील लिख दोगे फिर तो लोअर नील आऊगा, इसीलिए तक क्या कि स्टैंडर्ड रेंट वाली कंडीशन ही इतने अप्लाई नहीं हो रही। सो स्टेप 1 वाला आंसर ता कंटिन्यू हो रहा है बिकॉज वी हैव रिटन नॉट एप्लीकेबल। इफ यू विल राइट नील तब जीरो ले लेना, उसी चीज दे एरर ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਨॉट ਐਪਲੀਕੇਬਲ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਨॉट ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਇसी ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਇਜ਼ whichever is lower, तो जीरो ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਨਾ, दैट्स व्हाई। क्लियर है जाए, यस और नो? आगे देखो इलस्ट्रेशन 3, कैलकुलेट ARV, वही एनुअल रेंटल वैल्यू। एनुअल रेंटल वैल्यू इज द नेम फॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एनुअल रेंटल वैल्यू इज द नेम फॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मींस इतने हुन स्टेप कितने लगाने, 4। स्टेप 1 बोलो, MRV और FRV whichever is higher, तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर क्या आया 66,000। स्टेप 2, ERV is equal to, पूरा बोलना बच्चा, ERV is equal to स्टेप 1 दा आंसर और स्टैंडर्ड रेंट whichever is lower, तो फिर आंसर की होया फाइनल 66,000। उस तो बाद स्टेप 3, सेकंड स्टेप और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट whichever is higher, तो हुन की आंसर आ गया 72, यस और नो? स्टेप 4, GAV is equal to 72,000 minus vacancy allowance that is not available in the question, yes or no? So आंसर कितने आऊगा 72 ते जाके रुक जाओगे, yes or no? सॉल्विंग पैटर्न देखना, दिस इज द सॉल्विंग पैटर्न। की करोगे पहला केस ए, हायर ऑफ MRV और FRV 60 और 66 की आ गया 66, पहला आंसर हो गया। स्टेप 2, ERV is equal to लोअर ऑफ स्टेप 1 66,000 और स्टैंडर्ड रेंट कितना गिवन है 69,000, इन्हें जो लेना whichever is lower, तक ही आंसर आया फाइनल 66,000। स्टेप 3 इज हायर ऑफ सेकंड स्टेप और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड, द सेकंड स्टेप दा आंसर इथे लिखना 66,000 और एक्चुअल रेंट कितना 72, अनरियलाइज्ड नील, whichever is हायर कितना आ गया 72, yes or no? Step 4, GAV is third step minus vacancy allowance that was not there 72, इस पैटर्न हो जाएगा। दिस वाज केस A, कि केस B भी हो सकता हूं, बोलो दोबारा बोलो। स्टेप 1 MV FRV whichever is higher की आंसर आया 66। सेकंड स्टेप ERV is equal to this or this, standard and ना whichever is lower, आंसर। स्टेप 3, स्टेप 2 और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट whichever is higher, अगेन आंसर 66। स्टेप 4, दिस माइनस वैकेंसी अलाउंस, तो GAV कितना आ गया 66, यस और नो? करोगे उन सॉल्व होते था, करो शाबाश क्विक। इलस्ट्रेशन 4 देखो राजा, हाउस A, GAV फाइंड करनी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अदर नेम किया था ARV, दैट इज एनुअल रेंटल वैल्यू। बोलो स्टेप 1 MRV और FRV whichever is higher, सो की आंसर आया। स्टेप 2 ERV is equal to स्टेप 1 और whichever is lower की आंसर आया 70,000। स्टेप 3 सेकंड स्टेप और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड कुछ भी नहीं है कहते, सो 70 और 120 whichever is
हायर, सो 1,20,000. GAV इज इक्वल टू स्टेप 3 माइनस वैकेंसी अलाउंस. नहीं है, आंसर आ गया. केस हाउस बी ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ. कर लिए सीधे फिर ये दोनों जो विच एवर इज हायर, ये दोनों जो विच एवर इज लोअर, इना जो विच एवर इज हायर. वैकेंसी नहीं है तो आंसर वाला. डन, यस और नो, एनी डाउट? क्वेश्चन 4 हो जाऊंगा. MRV इज गिवन है, FRV गिवन है, पॉइंट. अच्छा, एक पॉइंट गिवन है रियल रेंट. रियल रेंट नु कितने यूज करोगे? एक्चुअल रेंट वाली जगह पे. बाकी दैट्स ओके, सिंपल है बाकी सारा. बट फर्स्ट केस नॉट एप्लीकेबल. नील तो नहीं लेना ना. 2 सेकंड से डिस्कस करिए. सीक्वेंस ची क्योंकि डाटा गिवन है ऑलमोस्ट. ए दोनों जो विच एवर इज हायर, इथों आ गया वाला. ए दोनों जो आना नहीं तो 75 आ गया. देन ए दोनों जो विच एवर इज अगेन हायर 75. अनरियलाइज्ड नहीं है, आंसर क्या आ गया? 75. यस और नो? दो मिनट. केस बी विच एवर इज हायर 60,000. 60 और 72 विच एवर इज लोअर 60. देन 60 और 54 विच एवर इज हायर 60. आंसर आ गया. हो जाऊंगा इसी पैटर्न. क्वेश्चन 4 कर लो. यस, बाकी कल इनू करो सॉल्व. क्वेश्चन 4 तक कर.